Good morning, class 8th. Today I am going to explain you chapter 7, that is on top of the world. Actually, this chapter talks about the achievements of many mountaineers. Okay, so I am reading this chapter line by line. The first paragraph is, what is common among river rafting, mountaineering, trekking and paragliding? All of them are physically daunting activities that offer unusual and exciting experiences. They are all adventure sports. Okay, मीन्स इसमें इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग दैट इन सारे एक्टिविटीज़ में लाइक रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग, व्हाट इज कॉमन अमंग देम? क्या इसमें कॉमन है? All of them are physically daunting activities. Daunting means difficult. The activities that are very difficult to be done physically. ओके जो कि क्या ऑफर करती है? एक अनयूजुअल और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है. मीन्स अगर आप इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, यू गेट एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. ओके, दे ऑल आर एडवेंचर स्पोर्ट्स. ये कैसे हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? व्हाट आर दे? दे आर एडवेंचर sports. Okay, the next paragraph is, mountaineering is one of the most difficult adventure sports. Actually this chapter is about mountaineering and the many stories of many mountaineers. So इसमें ये बोल रहा है mountaineering क्या है? एक बहुत ही difficult adventure sport है. It is the sport of climbing mountains पे चढ़ाई करना. Okay, it means mountains पे climb करना is mountaineering. Only brave hearts will think of going to unknown territories and conquering mountains. Conquering means, conquering means जीतना. ओके, तो कोई एक ब्रेव हर्ट ही होगा जो कि क्या सोचेगा? कैन ओनली थिंक कि मैं एक अननोन टेरिटरी में जाऊं और एक माउंटेन पे चढ़ाई करूं या मैं माउंटेन को जीत लूं, कॉन्कर कर लूं. ओके, Yet there is no dearth of mountaineers in the world. Dearth means scarcity, कमी. Yet चूंकि अभी भी कोई भी scarcity नहीं है हमारे वर्ल्ड में, there are lot of mountaineers. What actually they do? They climb small and big mountains as a sporting activities. वो क्या करते हैं? छोटा हो या बड़ा, माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं. क्यों? They do like sporting activity. They assume it that they are performing sporting activity. However, climbing Mount Everest, the highest mountain in the world, is the ultimate dream of any mountaineer. एक माउंटेन मीन्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना, जो कि क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का. क्या होगा वो? दैट वुड बी अल्टीमेट ड्रीम. एक बहुत ही अल्टीमेट ड्रीम होगा. किसका? किसी भी माउंटेनियर का. एक्चुअली many mountaineers had tried their luck at the conquest. Conquest means same, means जीत. Okay, conquest of this mighty mountain before. Many mountaineers क्या किए थे? अपना लक ट्राई किए थे कि शायद मैं इस पे चढ़ाई कर जाऊं. बट क्या हुआ? मीन्स they got success or not, that depends on that their try. Okay, मीन्स कहते हैं ना, यू नेवर गेट सक्सेस अनलेस यू ट्राई. ओके, नेक्स्ट, इन 1924 mountaineers Sandy Irwin and George Mallory made an unsuccessful attempt at the cost of their lives. It means 1924 में क्या हुआ था? ये दो माउंटेनियर्स थे, सैंडी इरविन एंड जॉर्ज मैलोरी, जिनकी डेथ हो गई थी. और वो क्या हो गए थे? वो अनसक्सेसफुल थे. दे वर नॉट सक्सेसफुल एट द क्लाइंबिंग ऑफ द माउंट एवरेस्ट. ओके, द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एवरेस्ट एक्सपेडिशन मीन्स अभियान. ओके, फर्स्ट गोज टू सर एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शर्पा टेंजिंग नॉर्वे ऑफ नेपाल. इट मीन्स पहला कौन था जिसने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट? वॉज दीज टू, सर एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड शर्पा टेंजिंग नॉर्वे ऑफ नेपाल. ओके, आई कैन आस्क दीज क्वेश्चंस इन 1 mark क्वेश्चन
कि किसने पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था. ओके, नेक्स्ट, दे कंकर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1953. ऐसा ये कब किए थे? When they become successful in conquering Mount Everest? In 1953. The first genuine ascent. Okay, ascent means चढ़ाई. Okay, तो ये पहला genuine ascent था, means पहली genuine चढ़ाई थी. Ever since the first conquest. और ये क्या था? पहला conquest भी था. Many mountaineers have successfully met the challenge of this peak. In 2006, another, अब क्या होता है 2006 में? Another New Zealander named Mark Ignis performed an absolutely incredible feat. Why? Because he was not having proper legs. Actually इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था for conquering the Mount Everest. Once upon a time he actually failed, और वो एक आइस केव में भी जाके फंस गए थे along with his friend. But after anyhow he managed इट, और ये आगे बढ़े. एंड ड्यूरिंग दैट वो उन्होंने दोनों पैर अपने खो दिए थे. ओके, बट एनी हाउ इन 2006 ये न्यूजीलैंड के थे जिन्होंने क्या किया था? एक इनक्रेडिबल फीट. इनक्रेडिबल फीट मीन्स इम्पॉसिबल अचीवमेंट, और सॉरी ग्रेट अचीवमेंट. इम्पॉसिबल टू बिलीव मीन्स ऐसा अचीवमेंट इनका था कि किसी को विश्वास ही ना हो. वाई? क्योंकि जिनके दोनों पाँव हैं दे आर नॉट एबल टू क्लाइम. एक्चुअली इनके तो पाँव भी नहीं थे, तो ये एक्चुअली इम्पॉसिबल था. ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच द समिट. समिट मीन्स ऊंचाई ऑफ माउंट एवरेस्ट. ये पहले ऐसे एम्प्यूटी थे. एम्प्यूटी मतलब जिनका आर्म्स या लेग्स उनका ऑपरेशन हुआ रहता है, एंड समथिंग मीन्स इंस्ट्रूमेंट लगा के वो लोग चलते हैं, तो दैट इज नोन एज एम्प्यूटी. तो ये पहले डबल एम्प्यूटी थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे और ऊंचाई पे पहुंचे थे. आफ्टर 40 डेज, टफ डेज ऑफ क्लाइंबिंग, मीन्स 40 दिन लग गए थे उनको क्लाइंब करने में. इन अप्रैल में 2006 द 47 ईयर ओल्ड, मीन्स हाउ ओल्ड ही वॉज 47 ईयर ओल्ड, मेड हिज फाइनल पुश फॉर द टॉप फ्रॉम कैंप 450 meters from the summit in perfect weather on 15th May. An astounding deed indeed. Okay, astounding means surprising. Okay, deed means कर्म. Okay, means ये एक क्या था? बहुत ही सरप्राइजिंग उनका ये कर्म था. Okay, means परफॉर्मेंस था. He was standing on his artificial legs on top of the world, literally. Means क्या हुआ? Actually वो सबसे ऊंचाई पे खड़े थे. ऐसा लोग खड़ा था who was actually not having legs, his legs. He was standing on his artificial legs on the top of the world. This is actually impossible to believe. Okay, means astounding feat. Next is, there stood the legless mountaineer happy beyond words. सही बात है. If he was legless mountaineer means he was happy, जिसकी शब्द में कोई means explanation ना हो. Enjoying his tramp means जीत. Gazing on all below him. Gazing on मतलब घूरना. क्या देख रहा था? लगातार वो देख रहा था उसके नीचे जितने सारे लोग थे. Thereby sending out an inspiring message to others with disabilities that their ambition should never be limited. It means disabilities तो आती रहती हैं लाइफ में, बट एक इंस्पायरिंग मैसेज इन्होंने दिया. व्हाट इज कि एम्बिशन आपका कभी भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए. दैट यू आर डिसेबल so you cannot perform this activity. You should keep your ambition. It depends on your trial, how much you try for your success or for getting your success. Next is, during the punishing climb, his prosthetic legs means artificial legs, had not caused any problem. This was the also one of the main कॉज कि वो आराम से चढ़ गए, कि जब वो क्लाइंब कर रहे थे तो वहाँ पे उनका प्रोस्थेटिक लेग्स भी उनका बहुत साथ दिया था. एक्चुअली when one artificial leg had broken earlier during the climb, Ignis described it as a minor hiccup. Hiccup means हिचकी.
एक बार क्या हुआ था, जब वो क्लाइंब कर रहे थे तभी एक उनका आर्टिफिशियल लेग टूट भी गया था, बट उनको वो प्रॉब्लम नहीं लगा. वो सोचे ये एक माइनर हिचकी है मेरे पाथ में ड्यूरिंग अचीविंग माई सक्सेस. He was carrying a spare means sufficient set of legs as well as equipment to make necessary repair in case of anything went wrong. कुछ भी गलत हुआ तो वो एक अच्छा खासा किट भी लेके चल रहे थे कि वो मैन्युफैक्चर कर लें अपना पाँव ड्यूरिंग हिज क्लाइंबिंग. In 1982, he and his fellow climber Phil Dooley were trapped in an ice cave for 14 days on Mount Cook, न्यूजीलैंड हाईएस्ट पीक. जब न्यूजीलैंड हाईएस्ट पीक में ये मार्क इग्निस ट्राई कर रहे थे कि मैं क्या करूं, माउंट कुक को क्लाइंब करूं, तो क्या होता है, वो लोग 14 डेज के लिए एक आइस केव में फंस गए थे. इग्निस मैनेज टू कीप हिज हेड मीन्स मैनेज टू कीप काम, ओके, एंड डिड नॉट पैनिक. बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, बट बोथ ऑफ देम सफर्ड फ्रॉस्ट बाइट मीन्स आँख, नाक मीन्स टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से मीन्स फ्रोस्ट हो गए थे. एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग्स एम्प्यूटेड बिलो द नी. और दोनों पाँव नी के नीचे क्या थे, उनको आर्टिफिशियल इम्प्यूटेशन कराना पड़ा था. ओके. Since 2006, Ignis had taken on a number of challenging roles and succeeded, ranging from legless sky guide to research scientist after hearing डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री. और उसके बाद क्या हुआ, इग्निस ने 2006 में बहुत सारे नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल्स किए, वो जीते भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, और उन्होंने एक डिग्री भी हासिल की, दैट वाज इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री. ओके. ही ऑल्सो वॉन अ सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग. सोचो जिनके पाँव नहीं थे, दैट वॉन अ सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग एट द सिडनी Olympics in 2000. Okay, learn this also. I can also ask this question. Okay, before leaving on his expedition means अपने अभियान जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना था उनको, उस पे जाने से पहले इग्निस said that the fact he had lost both legs and that no one has ever scaled the world's highest peak with the two artificial leg was of secondary importance. means उनका अगर पैर नहीं है तो ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस था. ओके. ही सेड विथ कन्विक्शन, आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी फर्स्ट डबल एम्प्यूटी. इफ आई एम देन इट इज द आइसिंग ऑन द केक, बट इट्स मच मोर देन दैट. मीन्स अगर मैं बिना पाँव के जा भी रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं डबल इम्प्यूटी हूँ, ऐसा पहला डबल इम्प्यूटी हूँ जो कि क्लाइम करूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ. बट ये क्या है, एक आइसिंग ऑन द केक है. मीन्स it's not much more that. Okay, I have been climbing most of my life. Everest is the achievement really. मैं बहुत सारे चढ़ाइयाँ की है, मैंने क्लाइम किया है माउंटेन्स को, बट मेरा एक बहुत अच्छा अचीवमेंट वॉज टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट टू डू अदर थिंग्स. ये क्या है, ये आपको ये अचीवमेंट क्या देता है, नॉलेज. एम्पावरमेंट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन अचीव anything if in your life if you have that much courage. ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है and if you try then you will definitely get success. Okay. Ignis, who kept a website diary of his climb, said that the expedition was also an effort to raise money for a Cambodian center that provide rehabilitation for landmine and amputees, पोलियो विक्टिम्स एंड अदर डिसेबल्ड पीपल. एक्चुअली इनका मेन मोटिव ये भी था कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूँगा तो मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे जो कि मैं इस सेंटर पे लगाऊंगा. किस सेंटर पे, जो कि कंबोडियन एक नेशन है वहाँ पे सिचुएटेड था, जो कि क्या प्रोवाइड करता था, रिहैबिलिटेशन मीन्स गुड कंडीशन प्रोवाइड करता था. किसको, लाइंड माइन एम्प्यूटीज मीन्स ऐसे लोग जिनके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, दे आर हैविंग प्रोस्थेटिक लेग्स एंड आर्म्स, उनको, या पोलियो है जिनको, या अदर जितने भी डिसेबल्ड पीपल हैं उनको, उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर था उसमें वो पैसा लगाना चाहते थे. ओके, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. सो आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी.
So after studying this chapter, you would know that if you try in your life, irrespective of many difficulties, you have to face the problem and keep the courage and go ahead in your life. Okay? Thank you. Now do your exercises and send me the pics.